Vaibhav's welfare in mind, my ideal preparation for him would be at the end of the IPL, allow him to play a year of first class cricket, give him some emerging tour or an India A tour and see how he pans out. Because that experience for a 12-month period, doing all different things, an opportunity to fail, an opportunity to succeed, will really hold him in good stead. So, hurrying him, yeah. But something like Ireland or something like a Zimbabwe technically is like an A tour, isn't it? I mean, it's not one of those top premier sides. I understand England or South Africa or Australia, but India is going to Ireland for 2 games. India is going to Zimbabwe for some games. Would you want to have somebody like that in the side? Okay, this is Vaibhav's second proper season in the IPL. He's done well reasonably in the last year. This is a year he started off well. My fingers are crossed. I really love that kid. I want him to do well. But look at the people that are standing in line, no? Yashasvi Jaiswal has been left out from 2024 World Cup. He needs to play T20 cricket. Priyansh Arya is also knocking on the doors. But mind you, Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi both played that emerging tour to Doha. That is correct. So keeping all that in mind, it's not a bad idea. I would think you can definitely try him out in countries like Ireland and well, you said Zimbabwe, right? You can surely, and I think he will end up being successful. But the only thing is he'll also get exposed to a lot of new conditions, which is also good for him. See, if we are applying this yardstick to Vaibhav, then we must apply the yardstick to several of the other cricketers also. But then an India cap must also have its value in terms of how you are staggering it, right? My concern is the value for an India cap. How quickly should you give it to someone? But I don't see a doubt in my head as to whether Vaibhav will play for India or not. I think he'll certainly play for India. I am trying to see how we can really, take him step by step. If you take him step by step, he has a really long career ahead, which he'll be able to. It's like basically readying people for life, right? So you're readying Vaibhav for what lies ahead, which is why I said take him step by step. Is it that this guy is playing the ball and not the bowler, and is that the best quality about him? That's the final point. He's a fabulous talent. It doesn't matter whether he's playing the ball or the person. He's clearly indicating that he's playing the ball. It doesn't matter to him who you are. If it's in his range, it's going. He's an exceptional talent. Such a talent. When talent meets opportunity is when amazing things happen. And for him, the more exposure he gets, the more amazing he's going to get. And I want to see him back for the next 15-20 years. Now, एक बात बताइए, जब आपने पहली बार वैभव को बैट पकड़ते हुए देखा था, आपने सोचा था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक बंधु लोग इनको देख रहे हैं उससे मैं नमस्कार करता हूं। और यहाँ तक वैभव की खेल प्रतिभा की बात है तो जिस प्रकार का उस बच्चे में मैंने प्रतिभा देखा, खेलने के प्रति जज्बा, लगन और परिश्रम और मेहनत देखा बचपन में, जो उनके पिताजी जिस तरह से उसे खिला रहे थे, कि वो अपने समय के खुद प्रसिद्ध क्रिकेटर रह चुके। तो उन्होंने जब 3-4 साल का जब वैभव हुआ तो उनको खुद बच्चा में खिलाने का काम करना चालू किया। लेकिन जब बच्चा में देखे नहीं, इसमें तो एक विलक्षण प्रतिभा है और क्रिकेट के प्रति जुनून है और लगन भी है, उससे इस खेलने के स्टाइल से योग्यता सब लोगों को लग गया था कि आगे चल कर वैभव जो है क्रिकेट जगत में अपना नाम रोशन करेगा और ख्याति प्राप्त करेगा और पैसा भी दिखाई भी दे रहा है और आगे भी दिखाई देता रहा है। फिर क्या कि जब वो पहला लिया था 3-4 साल का, उसी समय से उसको बल्ला और बॉल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे आप महाभारत में देखिएगा, जब स्वयंवर होता है द्रौपदी का, तो अर्जुन को सिर्फ मछली का आँख दिखाई देता है, किसी से मछली भी दिखाई देता था। इसी तरह उसका लक्ष्य था क्रिकेट और बॉल ही उसका लक्ष्य। और वो तो मैं भी बोला कि उसकी एक विलक्षण प्रतिभा थी, खेलने के प्रति जज्बा था और वो देख करके लग रहा था कि ये बच्चा मतलब जन्मजात बुझे की योग्यता लेकर ही वो निकला था, या उसको गॉड गिफ्ट कहिए या जो कहिए। और उनके पिताजी का जो उनको सिखाने के प्रति जो समर्पण, निष्ठा, तन मन धन जो समर्पित किए और जिस तरीका से उनको क्रिकेट सिखा रहे थे, उसको देख करके लग रहा था कि करेगा। और उन्होंने अपने पिताजी के उस स्वप्न को सच साबित करके दिखाया है। और अभी भी जो वो खेलता है, इतना जोर बोलता है
कि बॉलर को मैं नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ बॉल को देखता हूँ। देखिए आधा दिन तो वैसे क्रिकेट हाँ, में निकल क्रिकेट में जाता है। जाता है और उसके बाद थोड़ा बहुत टीवी पर या मोबाइल पर वो क्रिकेट का जो होता है यूट्यूब पर देखता है खिलाड़ी सबको कि कौन खिलाड़ी कैसे खेलता है, ये सब खेल को सर्च करता रहता है। जैसे वो बोला ब्रायन लारा जी के बारे में, अपना आइकॉन, सही। चाहे युवराज सिंह का, तो ये सब को, हालांकि ब्रायन लारा इनके टाइम में नहीं खेलते थे, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हर वो खिलाड़ी को टेक्निक देखता रहता है खेल में कि कौन बैट्समैन किस तरीके से खेलता है, ये सब उसका देखना काम है। और खाने पीने के प्रति उसका बहुत अच्छा क्या रहता है है। फेवरेट फूड, क्या है उसका? पहले तो वो चिकन उकन खाने का था हाँ। थी, और हर चीज खाता हर है। चीज खाता है। हाँ, और उससे मम्मी भी मीठा जो पसंद है? हाँ बच्चा है, सब चीज सही खाता है बात और बहुत ही सीधा साधा सरल स्वभाव का भी सही है, बात है। और उससे कहीं छल कपट नहीं। हाँ। और सभी अभी को कैसा हो गया है, मतलब क्योंकि अभी वो बाहर नहीं जा जो पाता। पहले था हाँ। हम लोग के परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, अभी वही है। वैभव क्रिकेट के खेल जगत में अपने ख्याति से अपने परम वैभव के शिखर को पहुंचा है, अपने नाम के अनुरूप काम किया है। हाँ। वैभव नाम है तो क्रिकेट अपना वैभव सही वो बात। दिखाया है, सही बात। और सूर्यवंशी सूर्य की तरह पूरे विश्व को, क्रिकेट जगत को प्रकाशमान भी किया सही है। बात है। इसमें कहीं तो होते सही हैं, बात। लेकिन उससे अभी भी व्यवहार में या स्वभाव में कहीं कोई परिवर्तन नहीं। जो पहले था वही अभी भी है, सरल सहज मृदुल और कुशल व्यवहार का लड़का है, और सीधा साधा साफ लड़का है। हमारे भैया संजीव सिंह जी बराबर सब गाइडलाइन करते हैं कि देखिए ख्याति प्रतिष्ठा कुछ भी, लेकिन तुम्हारा जो गेम है, जो खेल है, तुमको उसी को देखना है और उससे अलग नहीं भटकना है। या वो कोई भी उम्र होगा, वो बच्चा, उसमें एक संस्कार है, हम लोग का एक नैतिक संस्कार है माता पिता का, बाल बच्चा का, कि वो गार्जियन से कहीं भी बाहर भी रहेगा, वेस्टर्न कल्चर में भी रहेगा, तो गार्जियन से, अभिभावक से वो अलग नहीं जा सकता है। मैंने बोला ना आपको कि वो ना बॉल के करंट को देख के खेलना है, जो बचपन से सिखाया गया ना, उसको बॉलर्स को देख के खेलना है। ये बातें, क्योंकि वैभव जब बच्चा था तो ये उसके दिमाग में ये फीड कर दिया गया, और मैंने बार बार उसको कहा कि अपने को छोटा मत समझ, क्योंकि जो भी प्लेयर थे, जो भी बॉलर थे, ये आज नया नहीं है कि वो जब 12 साल का था, 13 साल का था, तब अपने से कहीं बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में वो खेल रहा था और रन बना रहा था। तो आज उसका नतीजा है कि उसके दिमाग में ये बात है ही नहीं कि मैं बॉलर्स को देख के खेलूँ या उसके नाम को देख के खेलूँ। अगर वो बॉलर्स को देखकर खेलता और उसके नाम को देखकर खेलता तो शायद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर पाता। डोमेस्टिक क्रिकेट में बस एक ही चीज़ उसको बताए कि तुमको बॉल को देख के खेलना है, बॉलर्स को देख के नहीं खेलना, क्योंकि तुम्हारे से सब बड़े बड़े बॉलर होंगे, उम्र में बड़े होंगे और मैचेस के एक्सपीरियंस में बड़े होंगे, लेकिन उससे परवाह ना करके तेरा जो गेम है उसको खेल। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये नया ट्रेनिंग नहीं है, इसके लिए तो बचपन से शुरू था। ये 12-13 साल का था, उस समय से ही उसको मैंने फीड किया हुआ था, और आज उसका नतीजा है, कोई रिजल्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। मेरा मानना है कि बार बार हम लोगों को यही बातें करते हैं कि जिस जगह पे गए हो और जितनी मेहनत करके गए हो, उसको मेंटेन कैसे रखना है, तभी आप वर्ल्ड क्रिकेट में नाम कर सकते हो। ये एक सीरीज़ में अच्छा खेल गए या दूसरे सीरीज़ में अच्छा खेल रहे, तो एक मैच के लिए मत सोच, कितना लंबा खेल सकते हो, वो बार बार उसके बात होती है। जिस लेवल को आज वैभव ने पहुंचा है, जिस लेवल पे पहुंचा है, उसको मेंटेन कैसे रखना है, इस पे बात होती है। वो भी एग्री करता है, और ये एक फ्लूक नहीं है कि एक 100 बन जाना। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस IPL में भी वैभव के 100 बड़े 100 आएंगे, और वैभव मुझे लगता है कि जल्दी ही इंडिया के लिए एटलीस्ट T20 में जल्दी ही आएगा, वो जल्दी ही आएगा, और मैचेस के लिए तैयार है। वो आना भी चाहिए उसको, और मुझे लगता है BCCI इसको देख रही होगी और निश्चित तौर पे मौका देगी। उससे बस एक ही सलाह था कि जो भी करना है एक दायरे में रह के करना है, और दूसरा चीज़, किसी भी कीमत पे ग्राउंड मत छोड़ना। अगर आप क्रिकेट को छोड़ के आप दूसरा कुछ करने लगोगे, ग्राउंड छोड़ के चले जाओगे, दूसरे किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगे ज़्यादा, तो निश्चित तौर पे आपके क्रिकेट पे फ़र्क पड़ेगा। और ये
भली बात ही वह भी जान रहा है इस बात को कि सर क्रिकेट ही है और उसके दिमाग में क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा कुछ चलता ही नहीं है। ना किसी स्पॉन्सर के बारे में सोचता है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन आएगा मेरे पास, कौन आए नहीं आएगा, आईपीएल में कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, किसने मीडिया में क्या लिखा नहीं लिखा, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे चेंजेस किए गेम में, लाइक जैसे सभी लोग आज बोलते हैं कि बैकलिफ्ट बहुत ऊपर है, बाहर से घूम के आता है। तो देखिए, जब मैं खुद खेल रहा था तो मैं खुद बहुत डिफेंसिव प्लेयर था, क्योंकि हमारे ज़माने में तो गेम ऐसा था कि यदि आप एक बॉल एयर में मार देते हैं तो कोचेस जनरली आपको नेट से बाहर निकाल दिया करते थे, या उस दिन पनिशमेंट मिला करता था, या आप लिफ्ट मार के या अपनी शॉट खेल के आउट हो जाते हैं तो ज़्यादा दौड़ाते हाँ, और बहुत शर्मनाक भी माना जाता था कि ये कैसा खेल रहा है, जैसे टेक्निकली इतना पुअर है। तो लेकिन जब मैं खेल रहा था तो एमएसडी हमारे बैचमेट है, हम लोग साथ खेले हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10 इयर्स। और युवराज सिंह भी हमारे ही एज ग्रुप के हैं, उनके साथ भी रेस्ट ऑफ इंडिया और ईस्ट जोन वर्सेस नॉर्थ जोन के मैचेस में, रणजी ट्रॉफी के मैचेस में खेलने का मौका मिला मुझे। तो मैंने एक बात गौर किया था कि ये लोग स्ट्राइक, मतलब उनका डिफेंस भी, यदि आप नज़दीक से उनकी बल्लेबाजी देखेंगे तो जो डिफेंस भी करते थे तो उसमें वो पावर जनरेशन ऐसा रहता था कि यदि बॉल को छोड़ दिया है तो ऑलमोस्ट बाउंड्री तक रोल बैक करता था। और उन सब का एक यूनिक फीचर ये भी था कि वो उनका बैकलिफ्ट बिल्कुल वो मैक्सिमम हाइट अचीव करता था, और बैट का फ्लो एब्सोल्यूट स्ट्रेट था। जो बॉल आ रही है उसके पीछे बिल्कुल ही स्ट्रेट जाया करता था। तो वैभव जब आया तो जो भी उस समय उनका गेम था उसमें इन सब चीज़ों को इनपुट देते रहा मैं, जैसे बैकलिफ्ट हाई करने का, स्ट्रोक्स प्ले करते समय बॉडी पोस्चर्स क्या होना चाहिए, क्या फ्लो बनना चाहिए। देखिए, आप सचिन के गेम को यदि बहुत ध्यान से देखेंगे तो उनके हर शॉट को यदि ध्यान से देखें तो एग्जीक्यूशन के बाद उनका जो बॉडी पोस्चर्स बनता है सो ब्यूटीफुल लगता है, फोटो परफेक्ट हो रहा और परफेक्शन दिखता था उनमें। और मैं खुद उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। अर्ली स्टेज में जब हम लोग खेल रहे थे तो सचिन के ही क्रेज में क्रिकेट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो हमारे लिए तो एक तरीके से गॉड है। तो और मैं जनरली टीवी नहीं देखता, तो जब तक सचिन खेले तब तक मैच देखा, और फिर वैभव अब खेल रहा है तो टीवी ऑन करके मैच देखने बैठता हूँ। वैभव में भी वो खासियत है कि इसी ग्राउंड की एक घटना है, जब एक मैच स्टिमुलेशन के दौरान मैंने वैभव को बोला कि वैभव, आप सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स पे फोकस करते हो, सिर्फ एयरबॉर्न शॉट्स मारते हो, ग्राउंडेड शॉट सिंगल डबल नहीं लेते हो। स्टेट मैचेस में 4 डेज मैचेस में आपको मोर देन 2000 बॉल डिलीवर होंगे, आप हर बॉल को नहीं मार सकते हैं, कि सिंगल डबल भी फोकस करो। तो उसने बोला, सर जिस बॉल को छक्का मार सकता हूँ उस पर सिंगल डबल क्यों करूँ। तो ये उनके क्लियर माइंडसेट को दिखाता है। तो ये सिमिलरिटी दोनों में है कि दोनों का बैटिंग पैटर्न देखें, यदि उनको लगता है कि ये लूज बॉल है तो वो ऑल आउट जाएंगे ही, उसको मारेंगे, नो मैटर कौन बॉल डाल रहा है और कैसा विकेट है। तो ये बहुत बड़ी सिमिलरिटी, और मैंने देखा जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो माइंड से बहुत क्लियर रहते हैं और उनको सेल्फ बिलीव रहता है। ये आपने कहाँ से ये हीरा ढूंढा, क्या कहानी है? क्योंकि पहला जो आपने उनको स्काउट किया, आप बता रहे थे मैं ऑफ कैमरा कि स्काउट आपने पहला किया है, बट आपको कहाँ से मिला ये लड़का? एक प्रैक्टिस मैच हमने खेला था, तो वो ऑलमोस्ट 11-12 साल का होगा। तब जब मैं क्रिकेट खेल रहा था जस्ट रिटायरमेंट से पहले, तो उसे देखा मैंने, और सब ये बोल रहे थे कि यार ये लड़के को देखना, ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला कि अच्छा 11-12 साल का लड़का है, क्या ही अच्छा होगा, कितना ही अच्छा होगा। जब लेकिन मैंने उसे देखा, मेरी बॉलिंग पे उसने कवर्स के ऊपर से छक्के मारे, ठीक है, फिर आड़ों पे छक्का मारा, तो मैंने बोला यार ये लड़का तो अलग लग रहा है। फिर मैंने 1-2 मैच और खेले तो समझ आया कि नहीं, ही इज़ डिफरेंट। और फिर जब वो अंडर 19 में गया, अंडर 19 में उसने झारखंड के अगेंस्ट एक 150 प्लस रन किए, और मेरे जो टीममेट्स थे झारखंड के, वो कोच भी थे, ईशांक जग्गी वो कोच थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये कौन लड़का है बिहार का जो ऐसा खेलता है, लग रहा है कि T20 खेल रहा है टेस्ट में। तो मैंने बोला कि नहीं, ही इज़ रेयर। तो वहीं से हमने पिक किया था उसे। बट
सर जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जब कवर करने जाते हैं कि लोग बुमराह को टच नहीं करते, लोग हेजलवुड को टच नहीं करते, कि इनके 4 7 8 ओवर है, निकाल लेते हैं, बाकी बॉलर्स को टारगेट कर रहे हैं, बट ये बंदा पहली बॉल पे छक्का, हेजलवुड को एक एक ओवर में 2 2 चौके, एक एक छक्का मार रहा है। सरप्राइज्ड होते हो आप देख के? नहीं, मैं सरप्राइज़ इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि ये बचपन से ही हमेशा यही बोलता था कि भैया बड़े बॉलर्स को ही मारना है मुझे। ये वाली जो मेंटालिटी है, मैं क्योंकि खुद दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली में खेला हूँ, तो वहाँ पे भी यही मेंटालिटी है कि बड़े जो भी इंडिया प्लेयर्स हैं, जो स्टेट खेल रहे हैं, उन्हें ही मारना है। तो यही इसका यूएसपी है कि ये बड़े बॉलर्स को मारने में उसे बहुत मज़ा आता है कि भैया मैं आउट हो जाऊँ लेकिन मैं इन्हें ही मारूँगा, तभी नाम होगा मेरा। तो ये है उसका यही मेंटालिटी और ये अच्छी मेंटालिटी है और होना भी चाहिए। आप तो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हो, बच्चों में, यंगस्टर्स में वो चेंज ऑफ एटीट्यूड या चेंज ऑफ विजन देखा है कि अब लोग सपना देखना स्टार्ट कर चुके हैं? क्योंकि आपके टाइम में बिहार क्रिकेट काफ़ी अलग था, अब ऑफ कोर्स सपोर्ट भी मिल रहा है, चेंज भी हो रहा है धीरे धीरे, बट लड़कों में जो नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं उनमें अब विजन में चेंज दिख रहा है आपको? बहुत विजन में चेंज है और जैसे मैं यहाँ ईशान किशन एकेडमी में हूँ, तो जो जिनकी एकेडमी है ईशान किशन, उनका भी यही मानना है कि बिहार में टैलेंट बहुत है। तो हमारा विजन ही है कि यहाँ से लड़के निकले और मैं बोलता हूँ कि यहाँ मतलब खान है टैलेंट का। आप अगर निकालने जाओ तो गांव-गांव से लड़के मिलेंगे। तो ये यहाँ के लड़के खेलने के काबिल हैं और वैभव जैसे और भी टैलेंट है जो हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं और ट्राई करेंगे कि खोजें। सबल भाई, जब आपने एक ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जब वो गए, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रायल दिया, तब जुबिन सर ने फ़ोन किया था आपको कुछ रिव्यू देने के लिए कि क्या लड़का भेजा है? नहीं, मैंने सर से पूछा था, मैंने ही पूछा था, मैंने कॉल किया कि सर कैसा लगा? बोला कि अरे यार ये क्या बंदा है? ऐसे ही बोला उन्होंने कि क्या बंदा है ये? पहले ही 3 बॉल 3 छक्के मार दिए उसने सब। उस वक़्त राहुल सर भी थे, तो राहुल सर खड़े हो गए, बोले ये कौन लड़का है यार, ये ऐसे मार रहा है। उसके बाद फिर जब इसका ऑक्शन हुआ, तो वैभव ने मुझे कॉल किया कि भैया थैंक यू आपने मुझे भेजा ये वो। तो मैंने बोला कि नहीं अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। नहीं, सरप्राइज़ नहीं है, वो उसका नेचुरल है। वो शुरू से ही जब छोटा भी था तो उसके पास शॉट शुरू से ही थे। तो ऐसा कुछ नहीं कि सरप्राइज़ है। वो बोलता ही है कि मैं बॉलर कौन है उसको मैं नहीं देखता, मैं बॉल को देखता हूँ। तो वही से तो इसमें सरप्राइज़ की कोई बात नहीं। वो ऐसा ही बैटिंग किया है और वैसा ही एटीट्यूड रखता है। और सबसे पहले कब देखा था वैभव को? क्या कहानी है उसकी? आप जब मिले उससे, कितने साल का था? कौन से साल की बात है? कौन सा टूर्नामेंट है? सरप्राइज्ड हुए थे कि भाई इतना छोटा सा बच्चा है, इसमें कुछ दमखम? जब ज़ोनल का मैच चल रहा था, सीनियर ज़ोन का मैच चल रहा था, तो ये पूर्णिया में मैच चल रहा था। तो वो दूसरे ज़ोन से खेल रहा था, उसी समय इसको मैं पहली बार देखा था। ऐसे नाम सुनता था कि मतलब एक 16 में देखता था, हमेशा 19 में भी 300 रन बनाया, हमेशा हर जगह रन बनाया, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी रन बनाया। तो मैं पहली बार उसको देखा था, तो वहीं मेरे को मिला। पहला इनिंग में तो रन नहीं किया था हम लोगों ने, मगर दूसरा इनिंग में 65 या 70 करके रन बनाया था। उसी समय हम बोले थे, भाई दम है इस लड़के में। और फिर जब दोस्ती बढ़ी, जब सेम टीम में खेलने लग गए, तो क्या कैरेक्टर दिखा? क्योंकि बच्चा है, मतलब हम बच्चों को क्रिकेट मैदान में ज़्यादा सीरियसली सीनियर प्लेयर्स नहीं लेते। जो थोड़े से उम्र में बड़े हैं वो साइड में ही रखते हैं कि तू तू मजाक है, तू अभी तक सीरियस नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने जब देखा, जब सेम ड्रेसिंग रूम में आए, बातचीत हुई, जान पहचान बढ़ी, क्या कैरेक्टर निकल के आया? तो उस समय बच्चों वाली तो हरकतें करता ही, बच्चा है तो ज़ाहिर-सी बात है वो करेगा ही। बट उस समय क्या था कि उसको भूख था बैटिंग का, मगर अगर क्या होता था कि अगर नेट्स खत्म भी हो जाता तो मेरे को बोलता था, भैया मेरे को थोड़ा बॉल डाल दीजिए आप। तो उसको शुरू से ही वो था और बाहर भी थोड़ा वो था, नटखट था, मगर क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा सोचता था। कुछ देर आकर अफ़सोस करता था, बट फिर आके अपना उसका थोड़ा जॉली मूड है, थोड़ा हँसता था, तो हमेशा अपसेट रहेगा तो ड्रेसिंग रूम का भी माहौल ख़राब होगा। तो आउट होने पे उसको लगता था, फिर अब सोचता था कि अगले मैच में कैसे रन बनाऊँ, उसको रन बनाना है बस, उसको ये था हमेशा से कि मेरे से रन क्यों नहीं लग रहा है? सही बात है। मैं प्रैक्टिस सारा चीज़ सही कर रहा हूँ, मेरे को रन क्यों नहीं बन रहा है? तो ये ऐसे करके सोचता था। और तो मैं तो थोड़ा-सा बाहर हुआ था तो रोया भी था, बट उसका उसी समय 23 में इधर रणजी ट्रॉफी से वो बाहर हुआ तो अंडर 23 के मैच खेलने चला गया वो। तो हम लोग के साथ ही ट्रैवलिंग किया था क्योंकि हम लोग का मैच था इधर मेरठ में था यूपी से, तो वहाँ तक गया था और इसका मैच शायद उत्तराखंड में था, तो उधर से उधर चला गया था। सूर्यवंशी ऑफ द फील्ड कैसा है? मतलब जब क्रिकेट नहीं चलता, आप लोग हो 4-5 दिन बाद मैच है, तब कैसा है वैभव सूर्यवंशी? ठीक है, मज़ाक मस्ती करते रहता है अभी वो और चिल रहता है,
उतना सोचता नहीं है। हाँ। बस ये है कि प्रैक्टिस उसको रोज चाहिए। प्रैक्टिस उसको हो। क्या है कि प्रैक्टिस उसको अगर मिल जाए कहीं भी, अगर उसको लग जाए कि यहाँ जाना है तो वो बोलेगा चलिए भैया चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। और क्योंकि इस साल रणजी ट्रॉफी के दौरान हम लोग का मैच कुछ बारिश के कारण वो हो जाता था, तो उसके जो कोच है मनीष कुमार सोनू, तो हम लोग उनके पास चले जाते थे प्रैक्टिस करने। बातचीत तो की ही होगी, तो उनके घर वाले कैसे हैं? क्या विजन है उनका? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो समस्तीपुर से पटना 3 घंटे का वन वे का रास्ता ईज़ी नहीं रहता। बट आपने जब उनको देखा हुआ है तब तब आँखों में वो चमक दिखी है कि नहीं इस हमारे बच्चे को कुछ बनाना है? कि क्या था कि उनके पापा भी पहले क्रिकेट खेलते थे, तो वो सोचे कि हम नहीं बने मगर मेरे को अपने बेटे पे मतलब ध्यान देना, इसको क्रिकेटर बनाना है। तो शुरू से ही अपने घर में ही नेट्स वेट्स लगा के उसको प्रैक्टिस करवाते थे। फिर उधर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर इधर पटना लेकर आने लगे। तो वैसे जब बातचीत होती है तब वो लगता है कि ज अरे रन्स नहीं बन रहे या 100 मार दिया। कुछ अलग-अलग इमोशंस आते हैं उनके तरफ से? नहीं, इमोशन जैसे क्या है कि रन नहीं बनता है तो परेशान तो होता ही है कि रन नहीं बना है इस इनिंग में, बट बोलता है कि मेरा बात होता है तो बोलता है भैया अगला इनिंग में ज़रूर मारेंगे। हाँ, उसको ये चीज़ है कि अगला इनिंग में ज़रूर करेंगे।